Hello, how are you student? Namaskar, by Suhas Patel. Now here 10 English medium student, subject maths, chapter 6, triangle. First part we learn about, this is second part of this, okay? First definition we show here, similarity of triangles. दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? Okay, so first triangle ABC and triangle DEF given here. If angle be same, A is equal to D, A 50 the DB 50 है, first condition. B 60, E 60, second. C 70, F 70. If triangle angle be same and congruent, and side be proportional, AB upon DE, AB upon DE, or BC upon EF and CA upon DF सेम होता है, proportional. देखें, देखो, AB upon DE, AB क्या है 2, DE क्या है 4, 2 2 is 4, 1 by 2. Okay, now BC upon EF 3 by 6, 3 2 is 6, 1 by 2. AC upon DF 4 by 8, 1 by 2. All answer be same, so we can say that all are equal. So these two conditions, so we can say that this is the ABCD correspondence. This is the symbol of the correspondence DEF. So these three conditions be proved. So we can say that triangle ABC similarity of triangle DEF. This is the symbol of similarity. Okay. Again I repeat, angle be same, triangle be same and side be proportional, यानी ये same, आंसर सेम आना चाहिए. This is called ABCD correspondence DEF. So triangle ABCD similarity, this is the symbol of the similarity, triangle DEF. Now second condition we taken here, AAA criterion. AA क्राइटेरियन का मतलब एंगल एंगल एंगल. इफ टू ट्राइंगल्स, यहाँ देखो दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों के एंगल सेम है 50 50, एक एंगल हुआ 60 60, टू एंगल 70 70, थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दिस इज कॉल्ड AAA, एंगल 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 क्राइटेरियंस. सेकंड कंडीशन AA criterions, and only for two side, two angle be same, 50 50, 1 and 60 60, 2. So this is called angle angle criterion. Third condition SSS, यानी side side side. Okay, एक AB proportional DE first, BC proportional EF second, AC proportional DF third. So this is side 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 side. So this is called side 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 criterions. Third one, side angle side, SAS, side angle side. Two triangle है जे side भी proportional, AB upon DE, फिर एंगल लेना है, एंगल A एंगल D are congruent. Third one, AC upon DF. So this is called side angle side. So this is called side angle side criterions. यानी ये 3 4 जो आपका वर्ड्स था वो मैंने आपको समझाया. और उसके अंदर एक कंडीशन दी है ये, if two angle be similar, so AB upon DE, BC upon EF and AC upon FD. So which is the condition if asked here? Here all are addition of upper side numerator, AB plus BC plus CA upon DE plus EF plus FD.
is equal to perimeter of triangle ABC, perimeter of all sides से addition, all sides addition, and perimeter of triangle DEF. इसका मतलब ये है कि all side angle so we getting the perimeter. ऐसे भी कर सकते हो, ये कंडीशन है. इसमें एक कंडीशन और दी है, ये ट्राइंगल है, AD इज द मीडियन. मीडियन का मतलब मिड पॉइंट ऑफ BC. BC का मिड पॉइंट होता है और अपोजिट साइड का वर्टाइसिस होता है. सो हियर कंडीशन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये आपको याद रखना होगा, ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. ओके कैसे? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ओके इस तरीके से आता है. अब एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं. इसके अंदर क्या है? स्टेट विच ऑफ द पेयर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन फिगर इज सिमिलर. आपको नीचे फिगर दी हुई है, उसमें आपको कौन सी सिमिलर है वो देखना है. राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियंस. ये used by you answering the questions and also write the pair of the similar triangles symbolical form. ऐसा symbolical form भी लिखना है. ओके फर्स्ट देखते हैं 6.3 फर्स्ट. तो इसके अंदर फिगर क्या है वो देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन फर्स्ट figure. 2 figure is given here. 1, 2. Here ABC, here PQR, here this 60, 80, 40, 60, 80, 40. Okay, so this is which triangle is criterion and which condition apply here. You saw here A is equal to P is equal to 60 and दोनों सेम है. Okay, B is equal to Q is equal to 80. ये भी दोनों सेम है. C is equal to R is equal to 40. ये दोनों भी सेम है. तो क्या हुआ? एंगल एंगल एंगल, ये ना एंगल एंगल कार्टेशियन. क्या आएगा? विच कार्टेशियन एंगल एंगल एंगल. सिमिलरिटी कैसी है? तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR. ये हो गया. ओके इस तरीके से फर्स्ट. सेकंड देखते हैं. सिक्स 6.3 सेकेंड पार्ट. फर्स्ट का सेकेंड. सिक्स 6.3 क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड. इसमें फिगर दी है. ABC 2, 3, 2.5. Here bigger figure is given. बड़ी सी दी है फिगर. PQR 6, 5, 4. Okay. Here which condition apply? Okay, वो आपको देखना है. देखो एक देखते हैं. ये सेम लगता है. तो AB अपॉन QR. AB क्या है? 2. ये क्या है? 4. 2 2 जा 4, 1/2 आएगा. यहाँ देते हैं BC अपॉन QR.
BC 2.5, PR 2.5 upon 5. We know that 25 है 50, तो 10 आएगा ना यहाँ. रिमूव द पॉइंट, यहाँ 10 यहाँ ले लो, तो क्या आएगा 5 5 is 25, 5 2 is 10, 1/2. ये लेते हैं AB अपॉन PQ. 2 AB AC अपॉन PQ. AC क्या है 3 है 6 है, 3 2 जा 6, 1/2. ऑल आर सेम. ओके, तो इसमें सेम है, तो साइड साइड साइड, तो कौन से क्राइटेरियन आएगा साइड साइड साइड. ओके, ये हुआ. जिसमें सिमिलरिटी कौन सी आएगी, तो ये आपको यहाँ से ABC से शुरू करना है. बराबर, फर्स्ट आपको सेम लेना है, बाकी उसके अंदर का कौन सा एक के सामने आता है वो लेना है. देखते हैं, देखो ट्राइंगल ABC वो लेना है. सिमिलरिटी ट्राइंगल. अब देखो A के सामने क्या आया नीचे Q, तो Q आएगा. B के सामने क्या आया R, तो QR, तो क्या बचा P, QR P. इस तरीके से. ओके, नाउ थर्ड वन देखते हैं, उसमें भी फिगर दी है. फिगर चेक कर लेते हैं पहले. दिस थर्ड फिगर, फर्स्ट रो आफ्टर वी सॉल्व. फिगर क्या दी है, छोटी फिगर दी है एक, LMP 2.732. Bigger figure is given here, DEF 4 6 5. फर्स्ट टेकन हियर, सपोज दिस 2 है, ये बचेगा MP अपॉन DE, 2/4, 2 2 जा 4, 1/2. ओके, इजी पड़ेगा. ये लेते हैं, बराबर, तो आपको वो भी 1/2 आ ही जाएगा. बराबर, ये लेते हैं. देखो 3 है, 6 है ना, तो LP अपॉन DF, तो 3/6, 3 2 जा 6, 1/2. ये लेते हैं LM, और LM के साथ क्या बचा ये EF 2.7 upon 5. Remove the point, 27/10 into 5. Not possible. Okay, ये कट नहीं होगा. 27/50. These two are equal, but this is not equal. Okay, तो no similar. ओके, सिमिलरिटी भी लिख सकते हैं, नो सिमिलरिटी. ओके, क्योंकि ये सब सेम नहीं है, तो ये फिनिश. सिमिलरिटी नहीं होगी तो क्राइटेरियन आएगा नहीं. 4 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 6.3 का फर्स्ट का 4. चलो फोर्थ में क्या है फिगर, फर्स्ट ड्रॉ द फिगर. Here smaller figure is given first, M N L, this 17, 2.5 5. This is bigger figure is given here, P Q R, 5 17 10. Okay,
इसमें देखते हैं। तो पहले ये है mn और pq, mn अपॉन pq 2.5 अपॉन 5, ओके, ये दोनों का। रिमूव द पॉइंट, 2.5 अपॉन 10 इंटू 5, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, यानी क्या आएगा 1/2, ओके। अब दूसरा देखते हैं एंगल, ये 70 है तो ये भी 70 है, तो एंगल m इज इक्वल टू एंगल q इज इक्वल टू 70, ओके। अब इसमें देखते हैं ml, ml इज इक्वल टू q अपॉन qr, तो ये क्या है 5 ये 10, 5 2 जो 10, 1/2, ओके। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइन कार्टेशियन। फिर सिमिलरिटी लिखनी पड़ेगी, ट्राइंगल पहले तो लिख देना है एम एंड एल, सिमिलरिटी ट्राइंगल। अब देखो एम के सामने क्या आता है P, ओके। ये M कॉन्ग्रुएंट Q है, देखो M के सामने Q है कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो Q आएगा क्योंकि M 70 तो से A 70 है। फिर M के सामने क्या आ गया Q आ गया, ओके। अब देखो N के सामने क्या आता है P, N के सामने P आता है, M के सामने P आता है, तो बचा क्या L के सामने क्या आएगा R, ओके। Q P R, दिस इज द सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल। आपको ये ऐसे करना है, ये लिख लेना है पहले, बराबर। तो ये आ गया, तो बचा क्या N के सामने P, फिर बचा क्या M के सामने Q तो आ गया है, तो बचा क्या L के सामने R, L के सामने R, ऐसे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5। First draw the figure after we solve 5 number. First of 5. First smaller figure is given here. ABC 2.5 83. This is the bigger figure is given here. DEF 85 6, okay. This is a similarity or not similar, वो देखना है। फर्स्ट यार ये देखते हैं, तो AB अपॉन DF 2.5 upon 5 and 25, remove the point 10, 5 5 is 25, 5 2 is 10 and 1/2 आएगा, ओके। A equal to F 80, ओके। बट BC अपॉन EF, BC 3 है, यहाँ 6 है, 3 2 जा 6, 1/2। अब इसमें दिखता सेम है और ये है नहीं, दिखते हैं, देखो कैसे। सिमिलरिटी देखते हैं, ऐसे साइड एंगल साइड आएगा तो देखते हैं ABC पर लिख दो, ये देखते हैं। जब A के सामने क्या आता है F, ओके। अब देखो A के सामने F आ गया, ओके। अब A के सामने F, तो B के सामने क्या आएगा D, ये B के सामने क्या आता है D, यहाँ B के सामने D है ही नहीं, देखो, क्योंकि C के सामने F है, B के सामने E है, बराबर। तो दिस इज नॉट सिमिलरिटी बिकॉज साइड भी प्रोपोर्शनल सेम बट एंगल भी नॉट सेम, ये यहाँ आना चाहिए, ये दिस इज ये गिवन, नॉट पॉसिबल, नो सिमिलर ट्राइंगल्स,
ओके, क्योंकि ए के सामने एफ आ जाता है, लिख दिया बराबर, पर बी के सामने क्या आता है, डी, यहाँ बी के सामने डी आता है, देखो यहाँ बी के सामने कहाँ आता है, डी तो है ही नहीं इसमें, बराबर, इसलिए नहीं है, इसलिए नो सिमिलर ट्राइंगल होता नहीं है। साइड प्रोपोर्शनल ओके, बट एंगल यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, ये नहीं है इसलिए। ओके, उसके बाद देखते हैं 6 नंबर, 6, तो इसमें दिया है, फिगर दी हुई है, फिगर ले लेते हैं पहले। डी ई एफ ये 70 है, दिस इज 80, here also figure PQR, P find out, Q 80, this 30, ओके, दिस इज सिमिलर या नॉट सिमिलर वो देखते हैं। देखो इसके अंदर ये फिगर दो फाइंड करते हैं, F कैसे आएगा, वी नो दैट सम ऑफ द 3 एंगल इज 180, तो 180 में से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 70 प्लस 80, दोनों तीनों का एडिशन 180 होगा, इसमें से दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, 180, 70 प्लस 80 150, यानी क्या आएगा 30, इस 30। सेम यहाँ फाइंड करते हैं एंगल P, सम ऑफ द 3 एंगल इज 180, 180 माइनस 80 प्लस 30, 180, 8 प्लस 3 11, 110, तो क्या आएगा 70, ये हो गया 70। अब इसमें देखते हैं, देखो एंगल D इज इक्वल टू P, ये 70 है, एंगल E इज इक्वल टू Q, ये भी 80 है। अब उसके बाद एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, वो भी 30 है। इसमें क्या है, देखो एंगल एंगल एंगल, ओके, बीच कार्टेशियन, एंगल एंगल एंगल। अब लिखते हैं ट्राइंगल, कौन सा पहला लिख दो, DEF। सिमिलर ट्राइंगल, D के सामने क्या आता है P, E के सामने Q और F के सामने R, दिस इज सिमिलर, ओके, इस साइड से ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 फिनिश हो गया। नाउ क्वेश्चन 2, उसमें फिगर दी है, फिगर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, देख लेते हैं क्वेश्चन 2। तो इसमें फिगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो ही आएगा, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड द फिगर, नॉट प्रॉब्लम बी सॉल्व। और आपको ये सारे कार्टेशियन भी आने चाहिए, ओके, वो देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन 2, इसमें फिगर दी है 6.3 का क्वेश्चन 2, दिस फिगर इज गिवन, यहाँ 1 2 ऐसे क्रॉस करके दिया है, यार O D C A B, this 125, this given, this 70 also given। अब क्या क्या फाइंड करना है, एंगल DOC फाइंड आउट, एंगल DCO find out, angle OAB, this also find out, okay, this given also। इसके अंदर ये तीनों फाइंड करने का बोला है। आपको क्या करना है, फर्स्ट देखो इसके अंदर दिस DOC करना है, तो ये टी शेप बनता है, देखो टी शेप, उल्टा टी है टी शेप, तो अपने क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पैर। लीनियर पैर आगे आ गया था 8 और 9 में स्टैंडर्ड में, तो इसमें क्या है, दोनों का एडिशन 180 होता है,
एंगल DOC ये फाइंड करना है, तो ये दोनों का एडिशन क्या होता है 180, सो प्लस एंगल COB BOC इज इक्वल टू 180, वाई linear pairs. Okay, DOC find out. BOC 125 is equal to 180. Going this side, DOC is equal to 180 minus 125. Okay, so 10 minus 5 5, 7 minus 2 तो 5 55. Okay, ये हो गया 55, यानी ये सॉल्व हो गया फर्स्ट। ओके, इसमें 3 आपको बोला है, तीनों को फाइंड करना है, इसलिए 3 हो गया। और दूसरा है DCO, देखो DCO ये फाइंड करना है। ओके, तो आपको मालूम है दिस इज द ट्राइंगल DOC, फॉर ट्राइंगल DOC. Okay, these two are interior angle, this is the exterior angle. We know that in the 9th standard interior angle addition is equal to exterior, बराबर, इसलिए लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल C is equal to BOC. Why? Exterior angles, these two are interior, इंटीरियर एंगल का एडिशन एक्सटीरियर एंगल तक होता है। D का है 70, C का मतलब है DCO, BOC का है 125. Going this side, DCO is equal to 125 minus 70. 5 minus 0, 5. Okay, 12 minus 7, 5. Okay, so this is also 55. दूसरा भी हो गया ये, यानी ये भी आ गया 55, ये इस ऑल्सो 55, ये हो गया। ओके, उसके बाद एक लास्ट पूछा है OAB, यानी ये OAB यानी ये AOB, OAB यानी ये बीच में O है, बराबर। ये कैसे आएगा, तो ये देखो Z बनता है, Z, दिस टू आर पैरेलल लाइन और दिस इज द ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन है, वन से DC और AB पैरेलल, और ये CA ट्रांसवर्सल है, तो Z बनेगा। Z को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल का एडिशन सेम होता है। ओके, इसमें लिखेंगे एंगल ये है OCD इज इक्वल टू एंगल OAB, क्यों इज इक्वल टू 55, दोनों का 55 आएगा। क्यों, रीजन क्या होगा, DC पैरेलल AB और ट्रांसवर्सल कौन सा है, AC, तो बनेंगे अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये भी 55 आएगा, ये भी हो गया। ओके, ये भी 55। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.3 फिनिश। ओके, बाय 70% सिलेबस। अब आगे देखते हैं, उसके बाद आपके सिलेबस में ये दिया है, हाँ 6.4 का 1 दिया है, चलो वो देख लेते हैं। 6.4 उसका 1 है। सिक्स 1 नंबर क्या दिया है, पहले रीड द क्वेश्चन आफ्टर वी सॉल्व। 6.41 ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF
Okay, here area of triangle ABC is 64 centimeter square. Here area of triangle DEF 121 centimeter square. EF 15.4 centimeter. BC find out. Okay. Okay, this is the theorem 6.6 we use this year. Okay, so area of triangle ABC upon area of triangle DEF, so BC upon EF whole square. Okay, this is the theorem 6.6. Okay, now put the value. This is 64, this 121, this BC find out, EF 15.4 square. 64 we know that 8 square, here 11 square. BC upon 15.4 whole square. Both the side remove the square. 8 by 11 BC upon 15.4. Going this side, BC is equal to 8 by 11 into 15.4. Remove the point, so after 10. Okay, 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 4, 11 4 जा 44. Okay, now BC is equal to 10. अब आपको टेबल आने चाहिए, टेबल नहीं आते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 14 8 जा 112, बराबर. नहीं आते तो मल्टीप्लाई करना है. 11.2 सेंटीमीटर. बस जीरो है 1 तो 1 पॉइंट पीछे से काटेंगे. ये हो गया. चलो ओके, इसमें एक ही सम था. अब इसमें 8 नंबर दिया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. चलो क्या है देख लेते हैं. ओके, टिक द करेक्ट आंसर इन जस्टिफाइड. आपको टिक करना है, करेक्ट आंसर भी बोलना है. इसमें दिया है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सो द D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. देखो ABC D मिड पॉइंट में है. ओके, उसमें दिया है BDE. ये यहां ले लेते हैं. हाँ, E यहां है. BDE ऐसे बेस एक है. ओके, तो इसमें क्या है, BD, जो BD है वो BC से हाफ है, आधा, क्योंकि D मिड पॉइंट है इसलिए. ओके, और क्या दिया है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ABC. हाँ, आपको इसका रेशियो फाइंड करना है. करते हैं. चलो, इसमें क्यों ऐसा आया, BD इज द हाफ ऑफ द BC. BD BC से हाफ है. इस तरफ ले लो तो BD अपॉन BC इज इक्वल टू हाफ. इक्वेशन 1 लो और दोनों का रेशियो लेना है पर एरिया में. एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला कौन सा दिया है इसमें, ट्राइंगल ABC, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा दिया है BDE. तो देखो इसमें क्या आएगा, BD अपॉन BC, BD अपॉन BC होल स्क्वायर. एरिया में स्क्वायर आता है. थियरम 6.6. इसमें ये ढूंढना है. BD क्या है, 1/2 स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 1/4. ये हो गया. इसके अंदर क्वेश्चन 9 दिया है. ऐसा ही क्वेश्चन 9 सेम है, देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. चलो, क्वेश्चन 9 is here. Side of two similar triangles are in the ratio 4/9. Area of the
triangles are ratio, okay, here 9 दिया है. Suppose we take a name, name नहीं दिया है, तो DEF ये लेते हैं PQR. Okay, here ratio similar triangles sides of, हाँ यानी सपोज हमें 4/9 दिया है, 4 है, सपोज 9 है, यानी EF अपॉन QR 4/9 गिवन दिया हुआ है साइड्स. आपको एरिया फाइंड करना है इसका, बराबर. तो कैसे आएगा? नेम इज नॉट गिवन बट आई टेकन द नेम्स हियर. एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो क्या आएगा? EF अपॉन QR होल स्क्वायर. तो 4/9 होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 8 8 जा 81, 9 9 जा 81, 16:81 ऐसे आएगा. ओके, अब इसके बाद एक सम और दिया है, वो देख लेते हैं. एक लेडर वाला क्वेश्चन दिया है, वो आपको देख लेते हैं. लेडर और टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है, वो देख लेते हैं. चलो उसके बाद ये खत्म हो जाए. देख लेते हैं. एग्जाम्पल 11, ओके, ये देख लेते हैं. A ladder is a place against the wall such that its foot is at a distance 2.5 meter from the wall. Top of the ridge is 6 centimeter above. Okay. इसमें ये सपोज वॉल है, ये लेडर है. यहाँ AB is the right angle. देखो इसमें ये दिया है, ये लेडर वॉल से इस लेडर का एंड ऑफ दिस 2.5 सेंटीमीटर दिया है. एंड हाइट ऑफ द वॉल यानी जहां लेडर टच करती है वो 6 सेंटीमीटर है. आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर. ओके, इसके अंदर आपको सपोज कर लिख सकते हैं. सपोज AB क्या है? द height of wall 6 centimeter, BC 2.5 centimeter, AC तो इसमें लास्ट दिया है वही लिखना है. हाँ, द लेंथ ऑफ द लेडर. ओके, इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें यूज करेंगे by Pythagoras. AC square is equal to AB square plus BC square. ये ढूंढना है 6 स्क्वायर, ये 2.5 स्क्वायर. 6 का क्या स्क्वायर 36 और 2.5 6.25. ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 42.25 AC स्क्वायर. ये रूट्स बाय देखते हैं 25 तो 5 आएगा. बाय वैदिक मैथ्स आपका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? 42 to 5 बाय 100 हो जाएगा. क्यों 100? पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट है. ओके, ये 10 का स्क्वायर है, ये अपने मालूम है. ओके, ये 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5. ओके, 42 कौन से किसके टेबल में आता है? 6 7 या 42. छोटा कौन सा है? 6 65 स्क्वायर. तो पॉइंट निकालो 65 बाय 10 तो 6.5 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. ओके, इस तरीके से ये जो चैप्टर था उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट बी फिनिश. ओके, ये हो गया. ओके, इस तरीके से आपको ये करना है तो इजी पड़ेगा. ओके, नमस्कार, बाय सुहास पटेल.